Hello all the future officers, I welcome you all in this video. In today's video we are going to discuss about the top 100 current affair MCQs for Series 1 2021 examination. This will be the part 6 video and we'll discuss question number 51 to 60 in this particular video. So let's continue and let's start with first question. Today's video's first question. Question number 51. The renowned poet Akitham Nambutri was passed recently was related to which language? ठीक है, the options are Kannada, Telugu, Gujarati and Malayalam. You have to choose one option. I'm giving you 5 second time. Just think about this question and think about the answer and write it down in the comment section. Guys, the correct answer for this question will be option D, Malayalam. So, Malayalam poet and Jnanpith laureate Akitham Nambutri passed away on 15th October 2020. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने दोबारा आपको कवर करवाया है. He was honored with 55th Jnanpith Award in 2019. आप बोलोगे कि 2019 का है, 2020 में जो है पूछा जाएगा, लेकिन 2020 के अवार्ड्स नहीं डिस्कस हुए हैं तो मे बी 2019 का आपसे पूछा जाए, तो ये आपको याद रखना है. He was also honored with the Padam Shri in 2017. ये नहीं पूछेंगे पद्म श्री के बारे में तो खैर, बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो है मलयालम पोइट थे और 55th जनीनपथ अवार्ड मिला है अकिथम नमूत्री को. इतना पता होना चाहिए बात कर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 52. Who has been conferred with the 2019-20 AIFF Men's Footballer of the Year award? Options are Sanju Yadav, option B Gurpreet Singh Sandhu, option C both A and B, option D बाला देवी. बताइए इसका आंसर क्या होगा. 5 सेकंड का टाइम ले लीजिए. So the correct answer for this question will be, guys, Gurpreet Singh Sandhu. All India Football Federation Awards 2019-20 has been announced. तो ये अवार्ड जो है नेशनल इंडियन नेशनल टीम गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू हैज won the 2019-20 All India Football Federation Men's Footballer of the Year award. The women's squad midfielder Sanju Yadav has won the 2019-20 All India Football Federation Women's Footballer of the Year award. ठीक है, संजू यादव को वुमेन वाला मिला है और मेल वाला मिला है गुरप्रीत सिंह संधू को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 53. Consider the following statement. RAISE 2020 is a mega virtual summit on artificial intelligence (AI). RAISE 2020 summit was organized by Ministry of Electronics and Information Technology and Niti Aayog. Options are option 1 only, option 2 only, both A and B, and D option is none. Think about 5 seconds. Take your time and just tell me the answer. You can use comment section anytime whenever you feel so replying the answer. So the correct answer for this question will be, guys, option C, both A and B. Prime Minister Narendra Modi inaugurated RAISE 2020, a mega virtual summit on artificial intelligence. तो आपको रेस की फुल फॉर्म पता होना चाहिए. रेस की फुल फॉर्म है द रिस्पॉन्सिबल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट. रेस 2020 is a global meeting of minds to exchange ideas and chart a course for using artificial intelligence for social transformation, inclusion and empowerment in the areas like healthcare, agriculture, education and smart mobility and other sectors. Basically रेस क्या है, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट है, जिसमें ग्लोबल मीटिंग आपकी हुई थी, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है आपके आइडियाज देते हैं रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की द फील्ड ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट मोबिलिटी कैसे करनी है उस तरीके से. ठीक है, तो इतना ही आएगा इसमें. नेक्स्ट इज योर मिनिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, तो मिनिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 54 थी जो वोट व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड. इस बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस बार जो है हम यूनाइटेड नेशंस को जो है 75 ईयर्स कंप्लीट किए यूनाइटेड नेशंस ने, तो मे भी इस बार आ जाए. क्वेश्चन ऑप्शन है 21 फर्स्ट सितंबर, 10th अक्टूबर, 24th अक्टूबर, 12th नवंबर. टेक 5 सेकंड टाइम एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Correct answer for this question will be, guys, your option C, 24 October. It is the correct answer. Every year United Nations Day is observed on the 24 October since 1948.
The day marks the coming in force of UN Charter and the Organization of Foundation in 1945. 2020 ईयर जो था आपका 75th एनिवर्सरी थी यूनाइटेड नेशंस डे की, और द नेम वाज कॉइन्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसने यूनाइटेड नेशंस का नाम किसने दिया था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। और ये जो है वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है इंटरनेशनल पीस और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इसको बेसिकली बनाया गया था, ताकि सभी पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक ऐसी संस्था हो जो इन सबको मैनेज कर सके। मेन ऑर्गन जो है यूएन के यूनाइटेड नेशंस के वो है आपकी जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो आपको बताना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है काफी न्यूज में रहा था पहले, तो इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर? ऑप्शंस आर उर्जित पटेल, ऑप्शन बी अनुपम खेर, ऑप्शन सी नवल किशोर सिंह, ऑप्शन डी रघुराम राजन। टेक 5 सेकंड टाइम एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी, नवल किशोर सिंह। थोड़ा सा मैंने कंफ्यूजिंग करने के लिए डाल दिया था पूरा नाम, नवल किशोर सिंह की जगह आप, इसका जो सही नाम है वो है एन के सिंह। ठीक है, मे भी आपने सुना हो काफी बार, आप पहचान जाएंगे आप। वेटरन इकोनॉमिक्स एंड ब्यूरोक्रेट एन के नंद किशोर सिंह, सॉरी नंद किशोर सिंह था वो, नवल किशोर नहीं आएगा वहाँ पे, हैज रिलीज्ड हिज ऑटोग्राफी टाइटल पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। इस बुक को जो है एन के सिंह की लाइफ के ऊपर जो है बनाया गया है बेसिकली। उसके बाद ही इज द करंट चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, रूपा पब्लिकेशन पब्लिश किया, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पता होना चाहिए। फाइनेंस 15 फाइनेंस कमीशन कौन है? एन के सिंह है, नवल किशोर सिंह या नंद किशोर सिंह जो भी आप बोलो, और ये इनकी बुक जो है बेसिकली आई थी। नेक्स्ट जो है बैटल ऑफ बिलोंगिंग इज रिटन बाय, ऑप्शंस आर उर्जित पटेल, शशि थरूर, चेतन भगत एंड अनुपमा राय। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी योर शशि थरूर डायरेक्टली। तो शशि थरूर ने जो है रिसेंटली अक्टूबर में जो है बुक निकाली थी बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ऑल्दो ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा बट स्टिल मे भी आ जाए, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आज इसका पीडीएफ में 60 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आज डाल दूंगा, प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए। What is Quan, which was recently in news? Okay, it is a superconductor, some supercomputer. It is a hypersonic missile, a conspiracy theory or movement, a computer game. Take 5 second time and tell the answer of this question. इसका जो सही आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन सी, द conspiracy theory. YouTube announced that it would take additional measure to block content that promotes Quan. Quan is a pro Donald Trump conspiracy theory or movement. Conan Conan has been under the spotlight in recent times. In July, Twitter and TikTok blocked some hashtags and removed some accounts related to it. Facebook announced a ban on Quan groups. ठीक है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के रिगार्डिंग था। उसके बाद which of the following country has recently tested an UAV named as Sea Guardian for maritime surveillance? Options are India, USA, China, and Japan. Take 5 second time and tell the answer of this question. Japan is the correct answer. Coast Guard of Japan has started the test of its new maritime surveillance drone. This UAV has been named as Sea Guardian. It is being tested at Maritime Self-Defense Force base in Aomori Preference North Japan. इतना सा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए टेस्ट किसने किया है। एक बार गूगल पे और चेक कर लेना, सी गार्डियन के नाम से इंडिया ने भी जो है 2 ड्रोन इंडक्ट किए हैं यूएसए से आई थिंक, तो उसके बारे में भी आप एडिशनल पढ़ लीजिए, हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। Question number 59. The second edition of India, Thailand, Singapore trilateral naval exercise Simtex 2020 conducted in which place? थाईलैंड, दिल्ली, अंडमान सी, नन ऑफ दीज। अब देखिए इस तरह जब क्वेश्चन आता है तो नेवल एक्सरसाइज है तो दिल्ली को आप तो वैसे एलिमिनेट कर सकते हो, नन ऑफ दीज होगा नहीं, तो थाईलैंड और अंडमान सी में से क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम लीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा आपका अंडमान सी। सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर ट्राइलेटरल नेवल सिमटेक्स 20 कनेक्टेड इन द अंडमान सी। ठीक है, ये देखिए गाइस अंडमान सी में है ये बेसिकली।
aims Simtex 20 series of the exercise conducted to enhance mutual intro interoperability and imbibing best practices between Indian Navy, Republic of Singapore Navy and Royal Thai Navy आएगा यहाँ पे। ये हिस्ट्री वगैरह आप पढ़ लेना। और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में? बोल्ड कुरुक्षेत्रा होती है जो आर्मी की होती है, जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है जो एयरफोर्स की होती है, सिम्बैक्स नेवी की है जो इधर पढ़ी हमने, ठीक है। इंडिया और थाईलैंड के बीच में क्या क्या होती है? मैत्री होती है जो आर्मी की है, सियाम भारत है एयरफोर्स की, इंडो थाई कॉर्पोरेट है नेवी की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, वर्णास्त्रा विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज अ ऑप्शन ए एंटी सबमरीन टॉर्पेडो, ऑप्शन बी योर surface to air missile, option C air to surface missile, option D anti tank missile. Take 5 second time and tell me the answer of this question. This is the last question of today's series. इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए एंटी सबमरीन टॉर्पीडो। एंटी सबमरीन टॉर्पीडो वर्णास्त्र was delivered to Indian Navy, ठीक है। This is heavyweight torpedo that has been designed and developed by Naval Science and Technology Laboratory विशाखापट्टनम NSTL, ठीक है। अब ऑप्शन इसमें पूछ देंगे कि डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है, इसरो ने डेवलप किया है, भारत डायनेमिक्स ने किया है, किसने किया है? तो डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय एनटीएसएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीइंग द प्रोडक्शन एजेंसी इज द मैन्युफैक्चरिंग वर्णास्त्र एट विशाखापट्टनम यूनिट, ठीक है। बनाया और डिजाइन किया है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने और प्रोड्यूस किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, बीडीएल। ये एक डिफेंस की जो है आपकी पीएसयू है बेसिकली, जो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करके देती है आपका इंडियन डिफेंस सर्विसेज को, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन गाइस। इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, ठीक है। शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको आज स्टडी फंडा के ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।